اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. رحمت العالمین سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے, تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے. ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں. وزیر اعظم عمران خان کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتھارٹی کے قیام کا اعلان. اتھارٹی دنیا کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ پیش کرے گی. بورڈ میں دنیا بھر کے نامور دانشور شامل ہوں گے. تعلیمی نصاب کی نگرانی اور میڈیا کے مواد کا جائزہ لیا جائے گا. بچوں کو اپنے کلچر سے متعارف کرانے کے لیے کارٹون سیریز بنائی جائے گی. ماہ ربیع الاول کو بھرپور طریقے سے منائیں گے. عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز پر فخر محسوس کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا. کرپشن روکنے کے لیے معاشرے کو متحرک ہونا ہوگا. طاقت پر مافیا انصاف نہیں اناروٹ چاہتا ہے. دھاندلی کے الزامات ختم کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے کا فیصلہ کیا. انتخابات میں دھاندلی کرنے والے نہیں چاہتے کہ نظام بہتر ہو. وزیر اعظم عمران خان. افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے $2 کروڑ سے زائد خرچ کیے. تمام نیٹو ممالک جنگ میں شامل رہے, پھر بھی دنیا اپنی شکست کا الزام پاکستان پر ڈال رہی ہے. افغانستان میں بدامنی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا. دنیا کو افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہنا چاہیے. پاکستان میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع ہیں. صدر ڈاکٹر عارف علوی کا خلیج ٹائمز کو انٹرویو. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے موقف کو الیکشن کمیشن میں شکست. دونوں پارٹیوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی اجازت دینے سے متعلق وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کی درخواست منظور. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے ہی کھودے گڑھے میں گر گئے. تحریک انصاف نے پارٹی فنڈنگ کی تفصیل الیکشن کمیشن میں جمع کرائی. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو. الوداع محسن پاکستان. نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سرکاری اعزاز کے ساتھ اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی. نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی. قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی, وفاقی کابینہ کے ارکان, عسکری قیادت اور سیاستدانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. قومی پرچم سرنگوں. وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں گراں قدر خدمات پر 3 صدارتی اعزازات سے نوازا گیا. پوری قوم کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت. صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. پاکستانی قوم کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی حیثیت قومی ہیرو کی ہے. ملک کو جوہری طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے محسن کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی. دوحہ میں طالبان اور امریکہ مذاکرات. افغان عبوری حکومت کو تسلیم کرنے پر بات ہوئی. دوحہ سمجھوتے پر عمل درآمد. امریکی بینکوں میں منجمد افغان اثاثوں کا اجرا پر بھی تبادلہ خیال ہوا. افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا بیان. ملک میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی. مثبت کیسز کی شرح 2.3%. 24 گھنٹے میں 1004 نئے کیسز رپورٹ. وبا سے مزید 28 افراد جاں بحق. 12 سال اور زائد عمر والوں کی ویکسینیشن کا عمل جاری. NCOC کی اجازت سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے آج سے 100% حاصل کے ساتھ کھل گئے.
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई, 2 कश्मीरी नौजवान शहीद, 5 गिरफ्तार। काबिज हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। कश्मीरी मुस्लिम ख़वातीन का आम शहरियों के कत्ल के खिलाफ श्रीनगर में मोमबत्तियाँ जलाकर एहतजाज। कश्मीरी पंडितों का भी वादी में अपनी बरादरी के अफराद के कत्ल के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा। भारत में लखीमपुर में किसानों की हलाकत के मामले पर रियासत महाराष्ट्र में मुकम्मल हड़ताल। स्कूल, तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी इदारे बंद, सड़कें और ट्रेनें भी बंद। रियासत महाराष्ट्र के हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम पार्टियों की तरफ से रियासत को बंद करने की कॉल दी गई। महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल की भी ताजरों से हड़ताल में शामिल होने की अपील। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के अगले 2 रोज के दौरान खित्ता पोठोहार, शिमाली इलाकाजात और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। नेशनल T20 तेजी से इख्तिताम की जानिब गामसन। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की लास्ट 4 में रसाई। दोनों सेमीफाइनल्स जल्द खेले जाएंगे। इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर में नेशनल T20 कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के 29वें मैच पे बलूचिस्तान और सिंध दिन 3 बजे मध्य मुकाबल होंगे। 30वां मैच नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान रात 7:30 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका में इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट। इटली के मेत्तेओ बर्टीनी और जानिक सिनर, फ्रांस के गायल मोनफिलिस, स्पेन के रामोस वेनोल्स, बरतानिया के एंडी मरे तीसरे मरहले में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव, यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास और रूस के कैरन खचानोव की पेशकदमी जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही हमें अज़मत और कामयाबी का रास्ता मिल सकता है। इस्लामाबाद में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात के आगाज़ से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर ही हम फलाह पा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीब के दौरान रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऐलान भी किया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नवीद असर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तहकीक और अमल करके ही हम मुल्क और माशरे को कामयाबी के रास्ते पर चला सकते हैं। अगर आप उनकी जिंदगी से सीखेंगे तो वो आपकी अजमत का रास्ता है। वही 2 रास्ते हैं, एक तबाही का रास्ता, एक अजमत का रास्ता है। असल में जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप उनका रास्ता मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो नेमत तो सबसे बड़ी उनको बख्शी है अल्लाह ने। वो तो अल्लाह के महबूब थे। अल्लाह हमें हुक्म क्यों कर रहा है कि उनके रास्ते पे चलो? हमारी बेहतरी के लिए। अल्लाह हमें इसलिए हुक्म कर रहा है कि अगर आप मदीना की रियासत के असूलों पे अपने मुल्क को खड़ा करोगे तो आपका मुल्क उठ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो सीरत नबी पढ़ें और इस पर अमल करें। उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर से तो सीखें। क्या उनको हम कैरेक्टर को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे? अल्लाह का हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो। रहमतुल आलमीन सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए थे कि इंसानों को लीडर इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता नफरतें फैला के। ये नहीं कहता कि जनाब हिंदू सबसे अजीम कौम है, बाकी सारे नीचे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख शाहिद है कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की पैरवी करता है वो इज्जत पाता है। जो सबसे बड़े उनकी सुन्नत पे चलने वाले ये बड़े बड़े सूफी थे इस बड़े सगीर के, निज़ामुद्दीन औलिया, दाता गंज बख्श, मियाँ मीर साहब, बाबा फरीद गंज शकर, जिनको सिख भी उनको फॉलो करते हैं। ये सारे बड़े इंसान थे। क्यों आज तक लाखों लोग जाते हैं और आज
اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے؟ بڑے انسان تھے وہ. سارے ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے، آپ پڑھائیں، پتہ تو چلے، کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. رول ماڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، آبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لیڈر کبھی انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ انہیں اکٹھا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت تنہا کرپشن کے ساتھ نہیں لڑ سکتی بلکہ اس کے لیے پورے معاشرے کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. کوئی بھی معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، یہ جو ہوتی ہے رائز اینڈ فال، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر ان کا عروج ہوتا ہے پھر وہ نیچے گرتے ہیں. آپ ان کی تجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشی طور پہ تباہی آتی ہے. اب کرپشن ہے، کرپشن کا ہے مطلب کیا ہے؟ عوام کا پیسہ چوری کرنا، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنا. جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا، جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے؟ ایک معاشرہ کرپشن کو فائٹ کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیرت نبی پر عمل کر کے ہی ہم ابدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھی کرتی کرتی اب یا کیا پہنچ، کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں، یہ تو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر. کرپشن اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے، قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے اندر ہماری اسکالرز کی، ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا. اتھارٹی دنیا کے سامنے اسلام کا اصل چہرہ پیش کرے گی جس میں دنیا بھر کے نامور دانشور شامل ہوں گے، جبکہ اتھارٹی تعلیمی نصاب کی نگرانی اور میڈیا کے مواد کا جائزہ بھی لے گی. انہوں نے کہا کہ بچوں کو اپنے کلچر سے متعارف کرانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ ماہ ربیع الاول بھرپور طریقے سے منایا جائے گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ ماہ ربیع الاول کو اس سال ریاستی سطح پر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. 3 سے 13 ربیع الاول تک ملک بھر میں مختلف پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. آج وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پہ زور دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چل کر ہی ہم تمام کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. محمد حمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کانفرنس کے انعقاد اور رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے اعلان کو خوشائند قرار دیا ہے. پی ٹی وی نیوز سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف اسلام کا روشن اور منور چہرہ دنیا بھر میں جگمگائے گا بلکہ معاشرے کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلنے کا راستہ بھی ہموار ہوگا. وزیر اعظم پاکستان نے عشرہ رحمت للعالمین کا افتتاح کیا ہے، ایک باقاعدہ اتھارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. اقلیتوں کے حقوق سے لے کر تعلیم تک، بچوں کے حقوق تک، اور پھر فحاشی عریانی کے حوالے سے جو آج بات کی ہے پرائم منسٹر نے، میں سمجھتا ہوں حقیقی طور پہ ہمیں اب پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی طرف بڑھانا ہے اور اس کی طرف لے کے جانا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے ہمارے بہتری کی طرف، ہماری کامیابی کی طرف، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. اور میں پورا یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس راستے کی طرف پہنچ جائیں گے، اس منزل تک جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. ہمیں سیرت نبی سے متعلق آگاہی ملی یہاں پر اور ان کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا. دنیا کو آیا ہو جائے گا کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، جہاں پر یہاں اقلیت باحفاظت ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے رسم و رواج بڑی خوشی اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں. جو اتھارٹی بننے جا رہی ہے رحمت للعالمین اتھارٹی، جس میں ان کا ویژن ہے کہ بہت سارے اسکالر ہوں گے جو اس چیز کو ایکسپلین کریں تاکہ ہم حقیقت میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور راستے پہ چلیں.
हम उनके लिए कट मरने को तो तैयार होते हैं, लेकिन उन मामलात को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अपनी आने वाली नस्ल और जो अभी मौजूदा नस्ल जनरेशन है, यूथ, उसकी तरबियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनके मामलात जिस तरह उन्होंने बयान फरमाए, जिस तरह उन्होंने आपको करके दिखाया, वो हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों में कैसे ला सकते हैं। उसके लिए एक बेसिक आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बेसिक आपको एक एक्सपोजर की ज़रूरत है, अपने दीन की तालीम की ज़रूरत है। औरतों के और बच्चों के हकूक़ जो हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, डाइवोर्स रेट ज़्यादा हाई हो रहा है, फैमिली किनशिप टाइज़ वीक हो रही हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, माशरे में बुराई बहुत बुरी तरह से फैल रही है, जिसको कानून और एडमिनिस्ट्रेशन भी काबू नहीं कर पा रहा। बहुत सारे हम ऐसे केसेस देखते हैं कि दिन ब दिन उनका प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम सीरतुल नबी को अपनाते हैं और अगर हम इस्लाम के ऐन मुताबिक अपने माशरे को उस तर्ज पे ढाल लेते हैं, तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। बारह रबीउल अव्वल की जो शुरुआत हुई हैं, जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर की विजन को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए और नीचे तबके के लोगों के लिए जो वो सोच रखते हैं, मदीने की रियासत की बात करते हैं। और मदीने की रियासत में ये है कि माइनॉरिटीज़ को हकूक़ मिलने चाहिए और ख़ासकर निचले तबके को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, तो उसको ख़ासकर सिख कम्युनिटी अप्रिशिएट करती है। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज़ को और सिखों को जो उनके हकूक़ हैं वो भरपूर तरीके से दिए हैं और माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में भरपूर आज़ादी हासिल है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में अमन चाहता है, क्योंकि पुरान अफगानिस्तान पूरे खित्ते में इस्तेहकाम समेत तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। खलीज टाइम को इंटरव्यू में सदर ममलकत ने कहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर हुआ है। बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करे। Pakistan is the only country which fought terrorism with success. We lost 80,000 lives, we lost $150 billion, but we handled it within the country much more efficiently than any country in the world. We believe for the regional economy that Afghanistan can itself be a conduit or a communication line between Turkmenistan, Tajikistan, Central Asian states for trade through Afghanistan. There are huge dividends in peace. If there is an uncertainty, the economies of the neighboring countries are also affected. So we are looking forward to peace, and I think I urge the world, let's strive for peace. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के सरमायाकारों को सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े फराहम करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की आलमी वबा के बावजूद पाकिस्तान में मौसर पॉलिसियों के बायस मुआशी बहाली मुमकिन हुई है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मुमताज़ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अस्करी क़यादत समेत मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुल्क के दीगर शहरों में भी मोहसिन पाकिस्तान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को तबीयत की खराबी के बायस KRL हस्पताल लाया गया, जहां तकरीबन 7 बजे वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। हस्पताल से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जसद खाकी E7 में उनकी रहशगाह मुंतकिल किया गया, जहां ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई, जहाँ उनसे मोहब्बत करने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौसम की खराबी के बावजूद मौजूद थी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल गजाली ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें काबीना, अरकान पार्लियामेंट, अस्करी क़यादत समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कदीर के जसद खाकी को तदफीन के लिए H8 के कब्रिस्तान में लाया गया, जहाँ मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र को सलामी दी।
तदफीन के बाद मोहसिन पाकिस्तान की कब्र पर सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, अमीरुल बहर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया समेत अहम शख्सियात की जानिब से फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर हुकूमत ने एक रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया। इस मौके पर कौमी परचम सरनिगू रहा। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी ने मुल्क को जोहरी ताकत बनाकर नाकाबिल तस्कीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। मुल्क के लिए उनकी खिदमात को कौम कभी फरामोश न कर पाएगी। ए बसा आरजू के खाक शुद्ध। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कौमी और अस्करी क़यादत ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। हर आंख अश्कबार है और हर दिल गमज़दा। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पूरी कौम को सोगवार छोड़कर दाइए अजल को लब्बे कह गए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने ट्वीट में सदर ममलकत ने कहा कि वो उन्हें 1982 से ज़ाती तौर पर जानते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क को जोहरी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को जोहरी ताकत बनाने पर पूरी कौम उनसे मोहब्बत करती है। कायम मकाम सदर मोहम्मद सादिक संजरानी ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम की खिदमात को सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने मारूफ साइंसदान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर का इंतकाल मुल्क को कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने भी पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए ग्रां कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वजीर ममलकत फरूख हबीब ने अपने अलग अलग ट्वीट्स में कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रहलत पर पूरी कौम अफसुर्दा है। वफाकी वज़रा ने अपने पैगाम में दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक अजीम इंसान और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। गवर्नर पंजाब और वजीर आला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर आला, गवर्नर बलूचिस्तान और वजीर आला, गवर्नर सिंध और वजीर आला, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वजीर आला ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल कौमी सानहे से कम नहीं। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर और वजीर आज़म ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक की पहली एटमी क़ुव्वत बनाया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने भी पाकिस्तान के मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सीरत रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करने का ऐलान किया है, जिसका पूरे मुल्क के अंदर और बैरूनी दुनिया के अंदर जो है खैर मकदम किया जा रहा है। इस अथॉरिटी के क़याम का जो ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बुनियादी मकसद बताया वो ये है कि इस अथॉरिटी के क़याम का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आगाह किया जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से। और जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने इसमें एक बात को बड़ा वाज़ेह किया कि हमें जहाँ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाना है, इन अय्याम को वहाँ अपनाना भी है। और इस हवाले से वफाकी वज़ारत मज़हबी उमूर, वज़ारत इत्तलाआत, नुमाइंदा ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दफ्तर, तमाम सूबों की वज़ारत जो औक़ाफ़ मज़हबी उमूर हैं, उन्होंने प्रोग्राम को तरतीब दिया है। इंशाअल्लाह जो जुमातुल मुबारक आ रहा है, जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर उन्वान होगा जुमे का सीरत तय्यबा की रोशनी में, इखलाक हसना, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, और औरतों और अक़लियतों के हकूक़, ये मौजू होगा इस जुमे, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह मुल्क भर के उलमा व मशाइख जो हैं वो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। दरअसल
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اگر اس کے تمام پہلوؤں کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور بتایا جائے تو میں یہ بات واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلامک فوبیا کا معاملہ ہے، باقی معاملات ہیں، دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جیسے اللہ رب العالمین ہے۔ اور وہ تو صرف انسانیت نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اونٹ بھی اپنی شکایت لے کر آتا ہے اور ہرنی بھی اپنی عرض لے کر آتی ہے، اور میدان جہاد میں یہ دنیا میں کہیں ضابطہ نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو جہاد کا کنسپٹ دیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سبز گھاس کو بھی نہیں رون سکتے، آپ پھلدار درخت کو بھی نہیں کاٹ سکتے، آپ جو جانور حلال ہیں بغیر ضرورت کے انہیں بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کے سامنے یہ پہلو لانے کی ضرورت ہے۔ اور اخلاقیات جو اس وقت جس طرف جو ہے کل وزیر اعظم پاکستان نے بات چیت کی ہے اور کہا ہے، وہ بہت اہم پہلو ہے کہ جو فحاشی اور عریانی کا ایک سیلاب آ رہا ہے، جو ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اصل جو ہیروز ہیں اور ہمیں جو ہمارے خالق و مالک نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو مخفی ہو۔ آپ کیسے آپ بیٹھے، کیسے آپ نے نماز پڑھی، کیسے آپ نے اپنے پڑوسیوں سے معاملات کیے، اور پھر کیسے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات رکھے، اپنے گھر کے اندر، باہر کے اندر، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں، ہر ایک چیز جو ہے، یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو مخفی ہو، اس لیے کہ قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ ہمیں واپس اس طرف جانا ہے، کردار سازی کی طرف، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ پرسوں بدھ والے دن ہم اسلام آباد میں ایک سیمینار کر رہے ہیں جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، اور انشاءاللہ تعالی ملک کے علماء مشائخ شریک ہوں گے، جس کا عنوان ہے کہ اقلیتوں اور عورتوں کے حقوق شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ اس مرتبہ جو تقریبات ہو رہی ہیں ان کو ہر تقریب کو ایک الگ موضوع دیا گیا ہے تاکہ ہر پہلو سے سیرت کے قوم کے سامنے جو ہے وہ لایا جائے، قوم کو بتایا جائے، نوجوان نسل کو بتایا جائے۔ اور اسلام جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیوں کی تعلیم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ آج کچھ لوگ صرف اپنی روایات کے لیے، اپنی جو ہے شملہ اونچا کرنے کے لیے بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اقلیتوں کا جو معاملہ ہے، غیر مسلموں کا جو مسلم ریاست میں ہیں ان کا جو معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حقوق دیے ہیں۔ اور پھر نجران کے مسیحی جب آتے ہیں مذاکرات کے لیے اور وہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عبادت کا وقت ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام بیت اللہ کے بعد جو مقدس ترین، اور بیت المقدس کے بعد مقدس ترین مقام ہے مسجد نبوی، اس میں مسیحیوں کو اجازت دی کہ آپ یہاں اپنی عبادت کر لیں۔ اسی طرح نوجوانوں کو، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے اسکولوں کے اندر، اور یہ جو اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے کل سے پوری مسلم دنیا سے اس کی تحسین ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں دنیا اسلام کے اہم ترین سکالرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ پاکستان سے جو اہم ترین جو ہے سکالرز ہیں، مفکر ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ اور اس کا بنیادی مقصد یہ میں سمجھتا ہوں 70 سال کے بعد یہ قدم اس دن اٹھانا چاہیے تھا جس دن پاکستان قائم ہوا، لیکن اب 70 سال کے بعد یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، جیسا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ کہاں پر کوئی کمی ہو رہی ہے۔
वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल पहले ये कदम उठाया जाना चाहिए था, जो कदम आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उठाया है। उन्होंने कहा कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम का मकसद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर रोशनी डालना है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुमताज़ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल से एक सुनहरा बाब ख़त्म हो गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनकी ग्रां कदर खिदमात पर 3 सदारती एजाज़ात से नवाजा गया। अजीम जौहरी साइंसदान के हालात ज़िंदगी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 में भोपाल में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद अपने अहले खाना के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आए। उन्होंने 1967 में इंजीनियरिंग की डिग्री हॉलैंड से हासिल की, जबकि डॉक्टरेट की डिग्री बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री के हसूल के बाद उन्होंने एम्स्टरडैम में फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री में काम शुरू किया। मैं हालैंड चला गया, फिर मैंने मास्टर्स की और उसके बाद मैंने वहाँ 1 साल प्रोफेसर के असिस्टेंट के तौर पर काम किया। मुझे बेल्जियम से एक ऑफर आया बहुत अच्छा, फिजिकल मेट्रोलॉजी में PhD की। उसके बाद मुझे जब मैंने PhD कर लिया तो मुझे ऑफर आया हालैंड से ही, एक कंपनी जो कि वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी जिसमें 1 लाख आदमी काम करता था। वो कंसल्टेंट थे न्यूक्लियर प्लांट के, जो कि 15 तो ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी ये सेंट्रीफ्यूज की, जिसमें हालैंड, जर्मनी और इंग्लैंड तीनों मिलकर कर रहे थे और ये सीक्रेट डिक्लेयर की गई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वतन वापस आकर 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में शमूलियत इख्तियार की। 1981 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज रख दिया गया। मई 1998 में पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब एटमी तजर्बा किया। जब हिंदुस्तान ने दोबारा की है तो फिर पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ गया। फिर हमने भी कहा कि जी अभी आपने नहीं किया तो फिर पाकिस्तान कभी नहीं कर सकेगा। वो जो है इफ्तिखार आरिफ का भाई जो कर्ज भी नहीं थे ना हमने वो भी चुका दिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनकी ग्रां कदर खिदमात पर 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें 2 निशाने इम्तियाज और 1 हलाले इम्तियाज शामिल है। उन्हें मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक फलाही इदारा भी बनाया जो तालीमी और फलाही कामों में सरगर्म अमल है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केस में महफूज फैसला सुना दिया और PTI को केस में बड़ा रिलीफ दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर ममलूकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली और उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई दे दी। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत के बाद वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को इलेक्शन कमीशन में शिकस्त हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे में खुद गिर गए जिसमें वो तहरीक इंसाफ को गिराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी कि नून लीग को पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जांच पड़ताल की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग की तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, जबकि ये दोनों जमातें इल्तवा और दूसरे हथकंडों के पीछे छुपती रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। जो उन्होंने इख्तियार किया था, वो चाहते थे कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें ना दिखाया जाए। ये हमेशा अपने मज़मूम मकासद के लिए पता नहीं कहाँ से फंडिंग लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी कि उनके कितने पार्टी के जाली अकाउंट्स हैं। अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गोशवारों में जो है वो छुपा रखे थे। अब तमाम हकीकत जो है वो सामने आएगी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा में अफगानिस्तान
اور امریکہ کے درمیان 2 روزہ مذاکرات میں افغان حکومت تسلیم کرنے کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کئی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے، جن میں دوحہ سمجھوتے پر عمل درآمد، امریکی بینکوں میں منجمد کیے گئے افغان اثاثوں کا اجرا اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ شامل ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق افغان وفد نے امریکہ کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے۔ طالبان کو امید ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ ادھر جرمن خبر ایجنسی کے مطابق طالبان نے داعش کے خلاف کارروائی کے لیے تعاون کی امریکی پیشکش مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی گروپ کے خلاف کارروائی افغان حکومت خود کرے گی۔ امریکہ ہماری سرزمین پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا۔ بات چیت میں امریکی وفد نے افغانستان میں موجود غیر ملکیوں کے محفوظ انخلاء کا مطالبہ کیا، جس پر طالبان نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کو بتدریج کھولا جا رہا ہے۔ قندوز، بلخ اور سویپل میں سینکڑوں اسکولوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام گرلز پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کئی اضلاع میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خواتین اساتذہ بھرتی کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اب تک افغانستان میں 100 سے زیادہ سیکنڈری اسکولوں میں طالبات کی تعلیم کا بندوبست کیا جا چکا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ان اقدامات سے مغربی دنیا کے ناقدین کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور رکن قومی اسمبلی پرویز ملک آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ مرحوم کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ پرویز ملک 2018 کے عام انتخابات میں لاہور کی نشست سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک اور بیٹا علی پرویز ملک بھی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب نے پرویز ملک کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پرویز ملک کی رحلت کا سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ وہ ایک انتہائی نفیس، ملنسار اور محبت کرنے والے شخص تھے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے تعزیتی ٹویٹ میں کہا کہ پرویز ملک کی وفات کا سن کر دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت آسان فرمائے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ مرحوم ایک مدبر سیاستدان تھے۔ ان کی سیاسی اور سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ نے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی، قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم اور قائد حزب اختلاف سید یوسف رضا گیلانی نے بھی پرویز ملک کے انتقال پر دکھ و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، جن کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے موجودہ حکومت تمام وسائل استعمال کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی اسپیکر نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرامز کا اجرا کیا ہے۔ سیمینار میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی منورہ منیر، عظمی ریاض اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے یورپ کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی ایس پی پلس میں توسیع کا معاملہ حل ہو جائے گا اور اس سلسلے میں پاکستان دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کو اب تک جی ایس پی پلس کا درجہ ملنے سے 24 ارب ڈالرز کا فائدہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک کو افغانستان اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کے بارے میں حقائق بھی بتائے جائیں گے۔ یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر ڈاکٹر فیبیو کی دعوت پر پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور 10 روزہ دورے پر یورپ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں افراتفری کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر چودھری نوریز شکور سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ منفی سیاست کرنے والوں کو عوام ہمیشہ کے لیے رد کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 360 ارب روپے کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج سے پاکستان کا ہر ضلع ترقی کرے گا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ساہیوال سمیت ہر ضلع میں فلاح عامہ کے منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
मुल्क में कोरोना की वबा में तो नुमायां कमी आई है, ताहम मुख्तलिफ शहरों में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू की केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू के हस्पताल को फ़ाल कर दिया गया है। 280 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल में अद्वियात समेत दीगर सहूलतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत के हस्पतालों में 1209 बिस्तर मौजूद हैं। मरीजों की फौरी मदद के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो घरों दुकानों में पानी जमा ना होने दें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज से मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने और कुदरती आफात में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने के हवाले से NDA का कलीदी किरदार है। हालिया ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसानात के इज़ाले, ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे समेत मुतासरीन की इमदाद और बहाली की सरगर्मियों में तेज़ी लाई जाए। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमायां कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,489 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,004 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% पर आ गई। गुज़िश्ता रोज़ वबा से मजीद 28 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,134 हो गई है। NCOC की टीम और रावलपिंडी इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन, दुकानों, होटल्स और चाय कैफों पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की। कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज से मुल्क भर में स्कूलों में 50% हाजिरी की शर्त ख़त्म कर दी है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चे मामूल के मुताबिक स्कूल पहुंचे हैं और तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है स्कूलों के हवाले से और आज हाजिरी कैसी रही है स्कूलों में बच्चों की? मेरे पीछे ये रावलपिंडी चकराला स्कीम 3 का FG कदरम पब्लिक स्कूल है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो मुसलसल स्कूल के अंदर जा रहे हैं और जैसा कि हमारे इल्म में है कि जो कोरोना केसेस का जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें काफ़ी जो है खातिर ख्वाह जो है वो उसमें कमी आई है और उसके बायस NCOC ने ये फैसला किया है कि स्कूलों को 100% हाजिरी के साथ, यानी जो तदरीसी अमल है आज से बाकायदा तौर पर मामूल के मुताबिक वो उसका आगाज़ हो चुका है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, इसके साथ साथ जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका भी इस्तेमाल करना है, समाजी फासले भी हैं। हमने देखा कि NCOC ने जो लिमिट है वैक्सीनेशन की कम करके 12 साल तक कर दी हुई है, उसकी वजह से वैक्सीनेशन का अमल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। तो ये तमाम के तमाम जो अच्छे इंडिकेटर्स हैं उनको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो स्कूल हैं उनको 100% हाजिरी के साथ खोल दिया जाए। हम देख सकते हैं कि अब तक तकरीबन 63 मिलियन जो हैं वो फर्स्ट डोजेस लगाई गई हैं, 32 मिलियन जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं और 89.71 मिलियन जो हैं वो अब तक टोटल डोजेस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कराची समेत सिंध में भी तमाम तालीमी इदारे आज से 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। हमारी नुमाइंदा कराची में मौजूद है जिनसे स्कूलों की सूरत हाल और हाजिरी के बारे में मालूम करते हैं। नौरीन, बताइएगा शहर कायद की क्या सूरत हाल है स्कूलों की? जी, मुल्क में कोरोना वबा की शरह में कमी के बाद तालीमी इदारे 100% हाज़िरी के साथ आज से खुल गए हैं। मुल्क भर की तरह सिंध के तालीमी इदारे भी खुल गए हैं और जो कि बहुत खुश आइंद है। अब कोरोना वबा के दौरान जो सिलसिला था ऑनलाइन का उसमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश रहीं। उसके बाद 50% हाज़िरी के साथ स्कूल खुले और आज से जो 100% हाज़िरी के साथ खुले हैं उसमें बहुत बेहतरी होगी। तलबा तालिबात जो हैं वो हमें बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई जो है वो बेहतर तरीके से जारी रख सकेंगे। असातिज़ा भी बहुत खुश हैं क्योंकि जो 50% हाज़िरी थी उसमें अल्टरनेट डेज़ में तलबा और तालिबात स्कूल आते थे और होमवर्क मुकम्मल ना हो पाना या क्लास वर्क में जो है वो क्लासरूम में जो वक्त है वो ज़्यादा नहीं दे पाते थे। अब मुकम्मल तौर पे जब पूरा हफ्ता स्कूल आएंगे तो हाज़िरी भी यकीनी होगी और SOPs का भी ख्याल रखा जाएगा ताकि इस वबा पर जो हमने जिस मुश्किलात का सामना किया और जितने बेहतर तरीके से हमने इस पे काबू पाया है, अब आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत बेहतर हालात होंगे ताकि हमारी ये जो तालीमी सिलसिला है ये बाकायदगी से जारी रहे और तलबा और तालिबात जो हैं वो अपनी पढ़ाई बेहतरीन अंदाज में कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौरीन, आप हमें कराची से अपडेट कर रही थी। और इस्लामाबाद और कराची के बाद रुख करते हैं मुल्तान का। कोरोना के मुस्बत शरह में वाज़ेह कमी के बाद तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ दोबारा खुल गए हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त मुल्तान में एक स्कूल में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि स्कूलों में बच्चों की हाजिरी और SOPs पर अमल दरामद के बारे में क्या इक़दाम किए गए हैं। जी फरहान।
जी बिल्कुल, NCOC की हिदायत के बाद आज ज़िला मुल्तान में भी 100% हाज़िरी के साथ तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खुल गए हैं और यकीनन आज ये तालिब इल्मों के लिए एक बड़ा दिन है कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी रख सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मैडम बिनिश मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम ये बताइए, एक तो आपके स्कूल में बच्चों की हाज़िरी कैसी रही और ये बच्चों के लिए कितना सूदमंद रहेगा? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये बच्चे जिस तरह से डिस्टर्बेंस चल रही थी, ऑनलाइन स्टडी 50% हाज़िरी, तो वो पूरी तरह से बच्चे फोकस नहीं कर सक रहे थे अपनी स्टडीज़ पे। अब अल्लाह का शुक्र है, इस तरह से हम आराम से बच्चों को फोकस करा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि NCOC की हिदायत है कि 12 साल से ज़ायद के जो बच्चे जो हैं, स्पेशली उनकी जो वैक्सीनेशन के हवाले से आपके स्कूल ने क्या इक़दाम किए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उसी तरह से उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं। बेटा आपको कैसा लग रहा है आज स्कूल आना? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे के बाद स्कूल एक्टिविटीज़ सारी वापस रवां हुई हैं और असेंबली भी हुई है, और ये सारी मेंटेनेंस देख के बहुत अच्छा लगा है। एक काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमारा जो स्कूल की सब कुछ सारा निज़ाम वापस बहाल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। जी, आप क्या कहेंगी, तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हो गई हैं, अब आपको 2 या 3 दिन की बजाय पूरा वीक आना पड़ेगा उस स्कूल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। पहले ऐसा था कि हम 1-2 दिन आते थे और 2-3 दिन छुट्टियां करते थे, हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था और हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा था। लेकिन अब माशाल्लाह से हमारा स्कूल और कॉलेजेस वगैरह खुल चुके हैं पूरे हफ्ते के लिए, तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और हमें पढ़ने में भी अब मज़ा आता है। बच्चे कह रहे हैं कि हम बड़े एक्साइटेड हैं और स्कूल दोबारा से खुल गए और यकीनी तौर पर जो बच्चों की तालीमी जो सरगर्मियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। इसके साथ साथ NCOC की हिदायत के मुताबिक जो कोरोना SOPs जो हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान की सूरत हाल से। आगे बढ़े नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज लड़कियों का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लड़कियों के हुकूक की तरफ तवज्जो दिलाना है। तफसील इकरा रज़ाक की इस रिपोर्ट में। 11 अक्टूबर को दुनिया भर में लड़कियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल लड़कियों के आलमी दिन का मौजू किसी भी बहरान से पहले, इसके दौरान और इसके बाद लड़कियों को बाइख्तियार बनाना है। बदकिस्मती से हमारा माशरा 21वीं सदी में भी लड़कियों को एक बोझ ही तस्वर करता है और लड़के और लड़की के दरमियान ये सिनफी इम्तियाज बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। तालीम हो या कोई भी शोबा, लड़कियों के साथ इम्तियाजी बर्ताव माशरे की अकदार का हिस्सा है, जिसके खात्मे और लड़कियों को इनके हकूक की फराहमी के लिए हुकूमत ने कानून साजी भी की है। लड़कियों को इनका जायज मकाम दिलाने के लिए जरूरी है कि इन्हें अपने फैसले करने का पूरा हक दिया जाए, तालीम के यकसां मौके फराहम किए जाएं और इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद दी जाए। लड़कियों को तरक्की के मरकजी धारे में लाकर मुल्की तामीर और तरक्की में इनके हिस्से को बढ़ाया जा सकता है। इकरा रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत की ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में आज 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को ज़िला बांदीपुर के इलाके शाहगंज और ज़िला इस्लामाबाद के इलाके खागंड में महासिर और तलाशी की 2 अलग अलग कार्रवाइयों में शहीद किया। शोहदा में से एक की शनाख्त इम्तियाज़ अहमद के नाम से हुई। फौजियों ने बांदीपुरा और इस्लामाबाद अजला में तलाशी की कार्रवाइयों में 5 नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है और पहाड़ों पर सरमा की पहली बर्फबारी भी देखने में आई है, जिससे मौसम सर्द हो गया है। तफसील बता रहे हैं निसार मेहदी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 44 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रावलपिंडी और अटक में 13, मालम जब्बा 21, कलाम 15, दीर 14, सेदू शरीफ 11, बाबूसर टाप 1 और गड़ी दुपट्टा में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सवात के इलाके गबी जब्बा, बशी ग्राम और कालाम के पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बारिश से मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द होने के बायस शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ ملک کے سیاحتی مقامات جھیل لولو سر، سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر گزشتہ روز برف باری ہوئی، جس سے ان علاقوں میں سردی لوٹ آئی ہے۔ جھیل لولو سر اور جھیل سیف الملوک پر رواں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے۔ ناظرین محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اس دوران وسطی کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔